میں یہ کہ ربا حامل فکر غیر فقیر، کہ محدث کو یہ دعا جب ہی پہنچے گی جب وہ معنی سمجھنے میں فقیر کی تابعداری کرے گا، تقلید کرے گا، کہ جو افقہ ہے اس کے پاس اس حدیث کو لے جاؤ تاکہ اسے سمجھ سکے۔ تو میں نے کہا جب یہ اب دیکھو ان کی بات کہ عامی آدمی سب سے پہلے قرآن دیکھے، خود قرآن کے خلاف نکلی، قرآن نے عوام کو صرف فقہا کے ذکر کی۔ ایک مناظرے میں کہ فلاں محدث نے یوں کہا ہے، ان کا محدث کی بات ماننے کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے، ہمیں تو فقہا کی بات ماننے کا حکم دیا ہے۔ اب میں نے فقہ والی 6-7 آیتیں پڑھ کے سنا دی، تو ایک آیت پڑھو کہ محدث کی بات مانو۔ یہ لوگ مانتے نہیں، میں نے کہا وہ لوگوں کا اپنی رائے ہے نا، تو ہم بھی محدث کی بات مانتے ایک شرط کے ساتھ کہ فقہا کے خلاف نہ ہو، فقہا کے خلاف نہ ہو، کیونکہ محدث کو خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ فقہا سے دین کو سمجھے۔ امام ترمذی خود ترمذی الفقہا عالم المعانی الحدیث، فقہا حدیث کے معنی زیادہ جانتے۔ تو اس لیے ہمارے جو دلائل ہیں وہ 4 ہیں، اور چاروں قسم کے جو دلائل ہیں ان کے مسائل یکجا ترتیب سے کس کتاب میں ملتے ہیں؟ فقہ کی کتاب میں۔ تو اسی لیے اللہ اور رسول نے امت کو فقہا کے سپرد کیا ہے۔ اب ایک زیادہ سے زیادہ وسوسہ دل میں پیدا کیا جاتا ہے کہ فقیہ کتنا بھی بڑا ہو وہ معصوم تو نہیں ہے نا، فقیہ کتنا بھی بڑا ہو وہ معصوم نہیں ہے۔ تو اس کا جواب خود پہلے آ گیا کہ فقیہ اور مجتہد ایک ایسی شخصیت ہے جس کے ثواب پر اللہ 2 اجر عطا فرماتے ہیں اور خطا پر 1 اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے مجتہد یا مجتہد کے مقلد کو تو ذرہ بر فکر نہیں، عمل یقیناً مقبول ہے، اس وجہ سے رد نہیں ہوگا۔ اور کوئی ریاکاری کی بات ہو تو الگ چیز ہے، عمل یقیناً مقبول ہے اور 1 اجر کا پکا یقین ہے، دوسرے اجر کی اللہ کی رحمت واسعہ سے امید ہے۔ تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت پڑی کہ ہم مقلد کو اور مجتہد کو ذرہ بھر پریشانی نہیں ہے، کیونکہ عمل ان کا یقیناً مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس وجہ سے رد نہیں ہوگا کہ یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ ہاں کوئی اور وجہ رد کی دوسری پائی جائے کہ ریاکاری کی وجہ سے، تو منصوص اعمال بھی رد کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا ہے، عمل یقین مقبول ہے اور 1 اجر بھی یقینی ہے، وہ فرض محال خطا ہی مان لو، چلو 1 اجر بھی یقینی ہے اور دوسرے اجر کی اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ اور غیر مقلد کا عمل یقین مردود ہے اور جوتے یقین پڑیں گے، اس میں شک تو نہیں، کیونکہ من قال فی القرآن برائی فاصاب فقد اخطا، ترمذی میں مشکات میں حدیث آپ نے پڑھی ہے۔ اب اس سے مجتہد تو یقین مراد نہیں، کیونکہ اس کی تو خطا پر بھی اجر ہے، کہ جا کے ثواب پر بھی اس کو خطا ملے، گناہ ملے۔ تو اس حدیث میں مجتہد یقین مراد نہیں اور مقلد بھی مراد نہیں، کیونکہ وہ اپنی رائے لگاتا ہی نہیں، وہ تو مجتہد کے پیچھے جا رہا ہے۔ تو یقین وہی نااہل غیر مقلد مراد ہے کہ جو اہلیت نہیں رکھتا اور دین میں ٹانگیں پھنسا رہا ہے ہم کا، تو وہ صحیح بات تک بھی پہنچ جائے تو پھر بھی وہ مجرم ہے شرعاً اور اس کو سزا ملے گی۔ عام طور پر یہ سوال اٹھاتے رہتے ہیں جی شافعی رفع دین کرتے ہیں، ان کو آپ کچھ نہیں کہتے، ہم رفع دین کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ لڑتے ہیں، اس لیے کہ شافعیوں کی رفع دین دلیل پر مبنی ہے، آپ کی بے دلیل ہے بالکل۔ کیوں جی وہی دلائل ہمارے ہیں؟ میں نے کہا وہی نہیں ہے آپ کے۔ کیسے کہ شافعی جو رفع دین کرتے ہیں وہ صاف کہتے ہیں کہ رفع دین کرنے نہ کرنے کی حدیثیں موجود ہیں، ان میں فلاں صحیح ہے، فلاں ضعیف ہے، فلاں راجح ہے، فلاں مرجوح ہے، یہ اللہ رسول نے بالکل نہیں بتایا۔ اس لیے جو بات اللہ رسول نے نہ بتائی ہو
उसमें हम मुजतहिद के मोहताज हैं। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के इज्तिहाद में रफ़ा दैन करने की हदीस राजे है। तो उन्होंने जो रफ़ा दैन को चौथी दलील से लिया ना, किताबुल्लाह ने राजे होना बयान नहीं किया, सुन्नत ने राजे होना बयान, इजमा इसको राजे नहीं मानता। इमाम शाफी का इतिहाद जो चौथी दलील है, मैंने कहा आपने कैसे राजे करार दिया भाई? क्योंकि अल्लाह आप नहीं है, रसूल आप नहीं है, इजमा उम्मत आप नहीं है, मुजतहिद आप नहीं है। तो आपने जो एक हदीस ले ली और दूसरी छोड़ दी, आखिर ये किस दलील से छोड़ी? किसी से भी नहीं। तो गौर से बात समझे कि इनके पास तो इस इंतखाब में चौथी दलील भी नहीं, इत्तिहाद और कियास वाली, और झूठ बोलते हैं हम अहले हदीस है। अहले हदीस तो जब होते कि फैसला हदीस का होता। जैसे बाद जगह हजरत ने ऐसी वजाहत फरमाई है ना कि पहले मैंने 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त रखने से मना कर दिया था, अब इजाजत है। तो पहली पिछली बात खुद वाज़ेह कर दी हजरत ने, अब किसी इमाम की तरफ जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। फरमाया पहले मैंने कब्रों की इजाजत से मना किया था, अब कब्रों की इजाजत जो है उसकी इजाजत देता हूं। तो पहली पिछली बात हजरत ने खुद वाज़ेह फरमा दी। तो अब देखिए इसी तरह यहां होता कि पहले मैं रफ़ा दैन करता था अब नहीं करता, या पहले नहीं करता था अब करता हूं, या फलां हदीस सही है फलां ज़ईफ है, तो फिर फैसला अल्लाह के नबी का होता। इस इंतखाब और राजे मरजू में अल्लाह के नबी का फैसला किसी के पास भी मौजूद नहीं। शाफियों ने अगर उन अहादीस को राजे करार दिया तो इमाम शाफी के इज्तिहाद से, हमने दूसरे पहलू को राजे करार दिया तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इज्तिहाद से। अब अगर शाफियों ने हमारे इमाम के इज्तिहाद को नहीं माना तो हम कभी ये नहीं कहते कि शाफी मोहम्मदी नहीं है, हम ये नहीं कहते कि शाफी नबी के मुनकर हैं, हम यही कहते हैं कि वो हनफी नहीं, यही कहते हैं ना। उन्होंने इमाम साहब के इतिहाद का इनकार किया ना, अल्लाह रसूल का इनकार तो नहीं किया। और शाफी भी यही कहते हैं, वो हमें ये नहीं कहते कोई नबी के मुनकर हो, खुदा को नहीं मानते, वो कहते कि इमाम शाफी के मुनकर हो, इमाम शाफी का इतिहाद नहीं। अब इधर गैर मुकल्लिद है, अब इंतखाब इसने किया, और जो इसके इंतखाब को नहीं मानता कहता नबी का मुनकर है। मैं सुना रहा था ना को गैर मुकल्लिद साहब, उसके सामने मैंने निसाई रखी, ये सही है ये ज़ईफ है। देखा ये अल्लाह ताला का इरशाद है कि नहीं, हजरत पाक का कि नहीं, इजमा उम्मत है कि नहीं, उनका किसी मुजतहिद का कौल है कि नहीं। कहते तेरी 2 दिनों में दाखिल नहीं, मेरी 2 दिनों में दाखिल नहीं, 4 दिनों में। अब मैं तेरी ये बात नहीं मानता बिल्कुल। अब मुझे एक बात बता दे, मैं चला जाता हूं कि मेरे जाने के बाद तू अपने शागिर्दों को क्या कहेगा? अगर तो कहेगा कि अमीन ने मेरी तहकीक नहीं मानी, इसका कोई असर नहीं होगा। ये सारे कहेंगे कि भाई जब तुम इमाम अबू हनीफा के नहीं मानते, अबू बकर सिद्दीक के नहीं मानते, तो अगर अमीन ने तेरी तहकीक नहीं मानी तो कौन सी क़यामत आ गई? इसका कोई असर नहीं होगा अगर तू सच बोलेगा ना कि अमीन ने मेरी तहकीक नहीं मानी। लेकिन तू मेरे जाने के बाद एक झूठ बोलेगा कि अमीन ने हजूर पाक की बात नहीं मानी, अमीन हदीस का इनकार करके गया है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार करता है। मैंने कहा देखो मेरे जाने के बाद जो तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह बनना है ना, तो मुझे ही बता दिया आहिस्ता से कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं, और मेरी तहकीक का इनकार करने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुनकर है। तो मैंने कहा बाद में जो बनना है मुझे बता दे, तू वाकई मोहम्मद रसूलुल्लाह है? तूने जो मेरे जाने के बाद कहना कि अमीन ने नबी की बात का इनकार किया, तू मुझे तेरे सामने बता कि तू नबी है, नहीं बात चले जाए नहीं आप उठ के। मैंने कहा कि तूने झूठ बोलना है, तूने मेरे फिर मैंने उनके शागिर्दों से कहा, मैंने कहा भाई देखो मेरे सामने ये इनकार कर रहा है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं हूं, मेरे सामने ये इनकार कर रहा है कि मैं नबी नहीं हूं। अब मेरे जाने के बाद अगर ये कहे कि अमीन ने नबी का इनकार किया है तो याद रखना ये धोखेबाज आदमी है,
मेरे जाने के बाद अगर वो कहे कि अमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार किया है, मैंने कहा ये धोखेबाज आदमी है, तो समझना। तो देखो, शवाफे के इज्तिहाद शाफियों के हमने नहीं माने, तो उन्होंने हमें यही कहा कि ये शाफी नहीं। शाफियों ने हमारे इमाम के इज्तिहादात नहीं माने, हमने सच्ची बात कही कि वो हनफी नहीं। लेकिन गैर मुकल्लद जिसके पास चौथे दलील भी नहीं है, क्योंकि मुझसे तो वो है ही नहीं, उसको तो इज्तिहाद की तारीफ भी नहीं आती, इज्तिहाद कहते किसको है, उसका इंतखाब किसी दलील शरई पर मबनी नहीं है, बिल्कुल किसी एक वजह नहीं है, सरासर बेदलील है वो। और इसके बाद हम जब उसकी उस बेदलील बात को नहीं मानते, कहते मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानते, यही कहते हैं, ये कुछ और कहते हैं, नबी की नहीं मानते ये लोग। तो याद रखें, शवाफे की रफ़ा दैन किसी दलील पर तो है ना, और उस दलील का असर क्या है कि खता पर 1 अजर और सवाब पर 2 अजर। हमारी रफ़ा दैन तर्क रफ़ा दैन भी दलील शरई पर मबनी है, गैर मुकल्लदों की दलील शरई पर मबनी नहीं। तो ये जो अवाम को धोखा देते, इसकी मैं 2 आम फहम मिसालें दिया करता हूं ताकि हर शख्स को समझ जाए। ये जो मैंने हदीस सुनाई है, मन काला फिर कुरान बेराई पर साहब का दस था, अलामा नबी रहमतुल्लाह दूसरी जिल्द में जहां हदीस आई है, इज़ा हाकमल हाकिम फइतहदा फअसाबा फलो अजरान में नख्ता फलो अजर वाहिद, इसके नीचे लिखा है कि तमाम उम्मत के उलमा का इत्तेफाक और इजमा है कि ये 1 अजर उसी का आदमी को मिलेगा खता पर जिसका मुजतहिद होना साबित हो, कुव्वते इज्तिहाद रखता हो। और अगर उसमें कुव्वते इज्तिहादिया नहीं है तो फिर उसको सजा मिलेगी, गुनाहगार है, अगरचे उसने मसला सही बताया हो। ये हदीस उन्होंने लिखी है। वो हमारे यहाँ एक कैंट फार्मेसी है, 15-16 डॉक्टर है, तो उनमें एक डॉक्टर गैर मुकल्लद था, नाम उसका शराफत अली था, अगरचे शराफत उसके करीब नहीं आई थी, नाम शराफत अली था। अब इनका क्या तरीका होता है, अपने मौलवी साहबान को दावत दे आना। अब वो आते, चाहे मिठाई वगैरह चलती और 2-4 रसाले रख जाते वहां, जो उनका तरीका कार है। 2 डॉक्टर और घर रफाई करने लगे, वो ऐसे ऐसे उनमें बात फैलनी शुरू हो गई, और ये ज़हन तो सबका बन गया हदीस हदीस। वो हमारे दौरा हदीस शरीफ में एक लड़का पढ़ता था, अब्दुल गफूर तलागंज का। तो उन डॉक्टरों में एक डॉक्टर तलागंज का था, वो कभी दवाई की जरूरत होती तो इस वजह से वो अपना वाकफ है, वहां चला जाता। अब वो गया तो जनाब वो 4 मौलवी बैठे गैर मुकल्लद, खूब मिठाइयां उड़ रही हैं, चाय उड़ रही है, और वो उनको फिका के खिलाफ उकसा रहे हैं। कहता मुझे जवाब तो उनकी बातों का आता नहीं था, जनाब मैं भी तब तक खामोश भी नहीं रह सकता था। मैं बड़े गुस्से में बोला कि आप एक ही तरफ की बातें सुनते हैं, हमेशा दूसरी तरफ की क्यों नहीं सुनते। अब वो उनसे इतने मुतासर हो चुके थे, कहने लगे कि मौलवी साहब आपको जल्दी खाम का गुस्सा आ गया है। ये मौलवी साहबान जब से आने लगे हैं, इन्होंने एक बात भी कभी अपनी नहीं बताई, जो सुनाते हैं नबी पाक की हदीस सुनाते हैं, एक बात भी उन्होंने कभी अपनी नहीं दिखा के वो दूसरी तरफ वाले भी हदीस सुनाएंगे ना नबी पाक की। अच्छा अगर कोई हो तो ले। उसने आकर, मेरा शागिर्द आसिफ शाह बुखारी, उसको कहा, मुझसे बात की, मैंने कहा कि उनको किताब हदीस वाले हदीस दिया जाए। वो ले गया, छोटे उसका अपना है, उसने किताब दी, जो बड़ा डॉक्टर का नाम मोहम्मद इलियास था, इसलिए जी किताब दे। अच्छा हदीसें हैं तो देख लें, अगर हदीसें हैं तो रख लें, नहीं है तो मैं वापस ले जाता हूं। तो देखा कि बाकी हदीसें लिखी है, तर्जुमा लिखा है, कितने की आई है, पहला एडिशन था जी 100 रुपए की है, ठीक है। उसने 500 का नोट निकाला कि ये रख जाओ, और 400 की और ऐसी किताबें उस्ताद जी से मशवरा करके ले आए। तो आया, मैंने कहा कि नमाज मसनून, रसूल अकरम का तरीका नमाज, और मेरे मजमुआ रसाल दिया उन्होंने। अब ये तो किताब रख के पैसे लेके आ गया। उस शराफत अली ने फौरन शरारत की और फोन किया अपने मदरसे में कि खैर मदारस से किताब आई।
کچھ فرمانا آپ کو اوپر سے ہو گیا، 11 شروع ہو گیا.